My dear students, today we will study pharmacology of aminoglycoside antibiotics. Aminoglycoside antibiotics वो एंटीबायोटिक्स हैं जिसके अंदर दो अमीन सुगर्स एक हेक्सोज रिंग के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। कैसे अटैच्ड होते हैं? लेट अस सी। एक सेंट्रल मोइटी होती है जो हेक्सोज रिंग होती है, दो अमीन सुगर्स अटैच्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। दिस सेंट्रल मोइटी इज हेक्सोज रिंग। ये सेंट्रल मोइटी होती क्या है? लेट अस सी। एक सेंट्रल मोइटी जिसको हम हेक्सोज रिंग भी बोलते हैं, एक्चुअली अमीनो साइक्लिटोल रिंग होती है। और यही रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो साइक्लिटोल रिंग, all aminoglycoside antibiotics are also known as aminocyclitol antibiotics. ये हेक्सोज रिंग है आपकी स्ट्रेप्टोडीन, इट अकर्स इन स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरी रिंग होती है 2-deoxystreptamine, ये होती है इन ऑल अदर अमीनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट देन स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दो आपकी अमीनोसाइक्लिटोल और यू कैन से सेंट्रल मोइटी और हेक्सोज रिंग है जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एक्चुअली इसको अमीनोसाइक्लिटोल क्यों बोलते हैं, कैसे बनता है, लेट अस सी। ये सेंट्रल मोइटी हम लेते हैं सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन की फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अगर हमने अमीन ग्रुप लगाया, इट बिकम्स 1,3-diamino साइक्लोहेक्सेन एंड नाउ इट इज 1,3-diamino इनोसिटोल। इनोसिटोल एक्चुअली क्या है? अगर हम इस अमीन और इस अमीन 1,3 बोथ अमीन्स को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, इट विल बिकम इनोसिटोल। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 1,3-diamino इनोसिटोल। इनोसिटोल एक्चुअली साइक्लिटोल है। और साइक्लिटोल क्या होता है? कोई भी साइक्लो एल्केन जिसके अंदर एटलीस्ट 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर 1, 2, 3 and 4 hydroxyl group है, that's why this is known as 1,3-diamino inositol। और इस 1,3-diamino inositol के डेरिवेटिव हैं आपके हेक्सोज रिंग। हाउ इट इज? ये थी स्ट्रेप्टोडीन which was present in the streptomycin. Now you see this moiety is 1,3-diamino inositol. This is the another 2-deoxystreptamine. You can see this moiety 2-deoxy, यहाँ से सेकंड पोजीशन से आपका डीऑक्सी हो जाता है, that will become 2-deoxystreptamine. It is also the moiety like 1,3-diamino inositol moiety. So this is central moiety, or you can say Hexose ring of aminoglycoside antibiotics. Now we will study about the classification of aminoglycoside antibiotics. Basically, these antibiotics are classified on two bases. Number one, source or origin. Antibiotics मिलती कहाँ से है? Second, route of administration. First, we discuss based upon the source or origin. Depending upon the origin, antibiotics are mainly, these aminoglycoside antibiotics are mainly classified into three categories. Number one, derived from the streptomyces. स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से डिराइव्ड होती है जिसकी स्पेलिंग के अंदर जो सुफिक्स आएगा दैट इज MYCIN, इट इज माइसिन। एंड सेकंड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा जिसके अंदर सुफिक्स आपका होगा मिसिन, MICIN। एंड थर्ड इज द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ either first class or second class. So first we take derivative of streptomyces. These are few examples. Streptomycin derived from Streptomyces gracius, kanamycin, tobramycin, neomycin, paromomycin, farmicitin. All these are the aminoglycoside derived from Streptomyces, and you can observe the suffix mycin. Second class, drug derived from Micromonospora having suffix mycin. Main example is gentamicin, also called gentamicin, but actual pronunciation is gentamicin. Sesamicin. Now next is semi-synthetic derivatives, amikacin, which is the derivative of kanamycin, netlimicin, derivative of gentamicin,
plasmamycin, which is the derivative of cisomycins. So these are the classification of antibiotics based upon source or origin. Now, second, based upon the route of administration, aminoglycoside antibiotics classified into three categories. One, which are given by systemic route, second by topical route, and third is by oral route. Now come to the systemic route. Streptomycin, kanamycin, tobramycin, gentamicin, amikacin, cisomycin, natilmycin, plasmamycin, all these are given by IV route, or you can say not IV, even parenteral route. That's why these are called systemic aminoglycosides. Second one is topically applied, that is neomycin, famotidine, and orally given paromomycin. The paromomycin only oral administration has been approved by the FDA, even though it has some use by the intravaginal route, intravenous route, intramuscular route, but FDA has approved only oral route administration. Now there is also a trick to memorize aminoglycoside examples. कई बार हम सोचते हैं कि इतने अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, कुछ ड्रग्स है, हाउ टू रिमेंबर दिस? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट ट्रिक. You are supposed to remember only a single and beautiful sentence. That sentence is, to prove the greatness. To prove the greatness, one should be strong, powerful, kind, and noble. To prove the greatness, one should be strong, powerful, kind, and noble. And all these blue letter will give you the complete examples of aminoglycosides like this: tobramycin, paromomycin, gentamicin, neomycin, streptomycin, cisomycin, powerful के P से plasmamycin F, famotidine K, kanamycin A, amikacin, and finally N, natilmycin. Now I think with this trick you can easily remember these examples. Now we come to the antibacterial spectrum. Aminoglycoside mainly active against gram-negative bacteria, especially Enterobacters or bacilli. These are effective against aerobic bacteria and bactericidal in action. कुछ ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन्स भी होते हैं जो aminoglycoside के लिए sensitive है, just like it basically cocci. In combination with the beta lactam antibiotics, these aminoglycosides are used against some gram-positive bacteria and also produce synergistic effect. Now we will study mechanism of action. कि aminoglycoside actually bactericidal action कैसे produce करती हैं. So these, in nutshell, if we say, aminoglycoside irreversibly inhibit the protein synthesis and produce bactericidal action. This action is achieved by two steps. The first step involves transport of antibiotic through the bacterial cell wall and cytoplasm, means aminoglycoside bacterial cell के अंदर enter हो जाएगी. And the second step is inhibition of the protein synthesis by misreading of the messenger RNA. Messenger RNA पर misreading हो जाएगी जिससे डिफॉल्ट प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इनकरेक्ट अमाइनो एसिड्स इंक्लूड हो जाएगा, तो एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा. हाउ वी विल सी द नेक्स्ट. तो फर्स्ट वी विल स्टडी ट्रांसपोर्ट ऑफ aminoglycoside into cytoplasm. साइटोप्लाज्म तक aminoglycoside जाते कैसे हैं? तो फर्स्ट aminoglycoside antibiotics, they penetrate the outer membrane of bacterial cell wall and reach the periplasmic space by passive process, that is simply the diffusion process, and this diffusion occurs via the porine channels. Secondly, from periplasmic space to the cytoplasm, aminoglycoside moves by active transport, which is oxygen dependent process. ये होता कैसे है? इसके लिए
हमें पहले थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, पोरिन्स क्या होते हैं, इसको स्टडी करना पड़ेगा। एक सिंपल सी डायग्राम है, यू कैन ऑब्जर्व इट for gram positive and gram negative bacteria. Here we have drawn cytoplasm in both the case gram positive as well as gram negative bacteria. This cytoplasm, outer covering of cytoplasm, this is the plasma membrane, or you can say cytoplasmic membrane. Now outside this, there is a thin layer, thin space even, that is periplasmic space. It is thin in gram positive bacteria, while very large space in comparison to the gram positive in gram negative. gram negative के अंदर periplasmic space ज्यादा होगा, gram positive के अंदर कम होगा. After that is the peptidoglycan layer. This is the main layer. Peptidoglycan are comparatively very thick in gram positive, and in gram negative it is very thin. Then outside this, there is one more layer, that is the outer membrane, which is composed of lipoproteins. It is present only in the gram negative bacteria. There is no outer membrane in the gram positive bacteria. And also in the gram negative bacteria, there are the porins. These are the protein channels, or you can say simply the channels for movement. So these porins, via these porins, aminoglycoside enters to the periplasmic space by diffusion, or you can say passive process. Further, in these bacteria, this peptidoglycan layer constitute the cell wall in gram positive bacteria, while this peptidoglycan as well as outer membrane both constitute the cell wall in case of gram negative bacteria. तो gram negative bacteria के अंदर जो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय डिफ्यूजन वाया दीज पोरिन्स, वो चले जाएंगे यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर. पेरिप्लाज्मिक स्पेस से जो साइटोप्लाज्म तक मूवमेंट होगी, दैट विल बी वाया active process that will involve the consumption of energy, that will be oxygen dependent. Now factors, or you can say some facts regarding transport of aminoglycosides. These facts, जो energy required होती है active transport के लिए, that energy is supplied from the transmembrane electrochemical gradient. Secondly, anaerobic condition inhibit the transport of aminoglycoside to the cytoplasm. Since this transport is oxygen dependent, यही रीजन है कि जो anaerobes है, that is not sensitive to the aminoglycosides, and facultative anaerobes are more resistant when oxygen supply is less. Now low extracellular pH, that is SD condition, also inhibit the transport by reducing the electrochemical gradient. जैसे जैसे electrochemical gradient decrease होगा, वैसे वैसे supply of energy decrease हो जाएगी. That's why transport is favored by higher pH, or you can say alkaline pH. So aminoglycosides are almost 20 times more active in alkaline medium than acidic medium. And transport is further facilitated by those drugs that are cell wall active, that act on the cell wall. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन. यही रीजन है कि ये एंटीबायोटिक्स अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ मिलकर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. देन सेकंड स्टेप, आफ्टर एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, हाउ दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें बेसिकली 30S सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, उसके साथ ये बाइंड करते हैं. और जो प्रोटीन रोग सिंथेसिस इनहिबिट करने के मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप्स हैं. स्टेप्स नंबर 1 कि दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स which is required for the protein synthesis. Second, they leading misreading of the messenger RNA code, जिसकी वजह से incorrect amino acids इंक्लूड हो जाएगा पेप्टाइड चेन के अंदर और नॉन फंक्शनल टॉक्सिक प्रोटीन बनेंगे. एंड थर्ड वन इज द ब्लॉक द ट्रांसलोकेशन
on messenger RNA. How this occurs? इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है. Let us see. Protein synthesis, this is simply have take the messenger RNA 5' to 3' direction. तो मैसेंजर आरएनए सबसे पहले क्या करेगा, इट विल मूव टू दी राइबोसोम्स 30s सब यूनिट. 30s सब यूनिट्स पर मैसेंजर आरएनए मूव किया. उसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या है, 50s जो सब यूनिट है दैट विल अटैच विद दिस मैसेंजर आरएनए, इट विल फॉर्म द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. जो पी साइट्स और ए साइट्स होती हैं 50s राइबोसोम्स के अंदर. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका ट्रांसफर आरएनए है, दिस ग्रीन कलर ट्रांसफर आरएनए, ये दूसरे अमाइनो एसिड्स को एक्टिव साइट पर लेकर आएगा. उन इस ए साइट पर लेकर आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. लेट अस सी. तो ये सेकंड आपका अमाइनो एसिड था, फर्स्ट वाज दी, जो सेकंड अमाइनो एसिड था एक्टिव साइट पर आएगा यहाँ पर लाइक दिस. देन दिस amino acid shift to this position, and finally this second amino acid move to the active site P, and this messenger or this transfer RNA becomes free. Now what happened in this point, ribosomes, this ribosome move on the messenger RNA. You can see this code QR, here Q becomes free, S come into existence, और इसके लिए जो नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए है वो नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा, और इन दिस वे ये चेन चलती रहेगी. यहाँ से अमाइनो एसिड ये जो आपका राइबोसोम्स है मैसेंजर आरएनए पर मूव करते रहेंगे, नेक्स्ट अमाइनो एसिड आकर इस पर अटैच होता रहेगा और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, दैट इज नोन एज polypeptide chain. Let us see how this occurs. It will go on change like QRS, then TUV, it will go on changing, और यहाँ एक चेन बन जाएगी अमीनो एसिड्स की. देन दिस चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव हो जाती है. तो दिस इज हाउ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स. अब हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैसे काम करते हैं, दैट एक्ट ऑन द 3 स्टेप्स. नंबर 1, ये इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने को ही रोक देते हैं. दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सेकंड, देखो मिस रीडिंग ऑफ द डीएनए कोड्स, ये जो आरएनए के कोड इसकी मिस रीडिंग करेंगे, जिसकी वजह से डिफेक्टिव अमीनो एसिड्स आ जाएंगे. तो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी दैट विल बी डिफेक्टिव चेन बनेगी. एंड थर्ड वन इज, जो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन पी साइट पर जाकर रिमूव होनी थी, ये फ्री होनी थी, यहाँ पर ये एक्टिव साइट ये फ्री नहीं हो पाती. मींस ये जो ट्रांसलोकेशन होना था ये इनहिबिट हो जाता है. देयर इज ब्लॉकिंग ऑफ द ट्रांसलोकेशन. तो दीज आर द 3 पॉइंट्स वेयर aminoglycosides act and inhibit the protein synthesis. Now some facts regarding inhibition of protein synthesis. All these 3 एक्टिविटीज जो प्रोटीन सिंथेसिस करना कर साइमल्टेनियसली इकट्ठी हो सकती हैं. यही रीजन है कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, साइडल इफेक्ट आता है. और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट बिकम्स मोर परमेबल. जो सेल मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमेबल होने से जो सेल के इनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आयंस है, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स है, दैट विल लीक आउट फ्रॉम द सेल्स लीडिंग टू द सेल डेथ. और यही रीजन है कि इसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. जो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट है दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट. फर्दर aminoglycoside also produce post antibiotic effect. अब ये post antibiotic effect क्या होता है, which is also concentration dependent. post antibiotic effect simply means कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से कम हो जाती है, उसके बावजूद भी एंटीबायोटिक इफेक्ट परसिस्टेंट रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन दिस इज कॉल्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. मींस एंटीबायोटिक देने के बाद अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कम होने के बाद भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, परसिस्टेंट रहता है, देन दिस इज नोन एज
पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट केवल उन्हीं एंटीबायोटिक्स के अंदर मिलता है जो सेल वॉल के साथ स्ट्रोंगली बाइंड करती हैं, सेल वॉल कंपोनेंट्स के साथ, या फिर बैक्टीरिया के अंदर जो लाइफ सस्टेनिंग एंजाइम्स है उनको इनहिबिट कर देती है। और जो पोस्ट, यही this occurs only due to the strong post antibiotic effect of aminoglycosides, कि इनके शॉर्ट टी हाफ होने के बावजूद भी जो सिंगल इंजेक्शन है डेली डोज का वो ज्यादा इफेक्टिव और लेस टॉक्सिक है। देन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिकली 2-3 पॉइंट्स जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स का। पहला क्या है कि अगर बैक्टीरिया कोई भी एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर दे जो अमीनोग्लाइकोसाइड को इनएक्टिव कर देगा बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो एंजाइम्स आइदर एक्ट बाय एडिनाइलेशन, एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। सेकंड क्या है, कोई भी ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जीनोटाइपिक चेंजेस आ जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, या पोरिन प्रोटीन जो बने थे वही डिलीट हो जाए, या कुछ फिनोटाइपिक चेंजेस आ जाए, कोई कि कुछ ऐसी ग्रोथ कंडीशन हो जाए जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट को चेंजेस करती हैं, कि एनी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चेंजेस दैट अल्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड इनटू द सेल्स, कि वो सेल के अंदर ही नहीं आ पाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। एंड थर्ड वन इज ये कोई भी म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से जो 30S सब यूनिट थी राइबोसोम्स की, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स थे, जिन रिसेप्टर्स पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स अगर बाइंड करते थे, अगर उसी का अल्ट्रेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, मींस अगर अमीनोग्लाइकोसाइड ने सेल के अंदर एंटर भी कर लिया तो वो 30S राइबोसोम के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। देन फार्माकोकाइनेटिक्स, जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं अगर ओरली दिए जाते हैं तो जीआईटी से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली एब्जॉर्ब होते हैं, एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इन द फीकल मैटर। दे आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द आईएम इंजेक्शन साइट, यूजुअली आईएम रूट से और आईवी रूट से ही दिए जाते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशंस, दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यही रीजन है कि इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जनरली लो कंसंट्रेशन अटेन होती है सीएसएफ के अंदर, एक्वस ह्यूमर एंड सीरस फ्लूइड्स लाइक साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड। वेरी हाई कंसंट्रेशन can be attained in endolymph and renal cortex. That's why these called ototoxicity and nephrotoxicity. They can easily cross the placenta. प्लेसेंटा को बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और फीटल ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड तक चले जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज हैव टेराटोजेनिक इफेक्ट, टेराटोजेनिक टॉक्सिसिटी होती है, एंड दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है दैट इज नॉट क्लिनिकली significance. Now, metabolism and excretion. Aminoglycoside are not metabolized in the human body. These are excreted unchanged as it is excrete out होते हैं in urine and basically by glomerular filtration. Tubular secretion और tubular reabsorption almost nil होते हैं। अगर chronic dose दी जाए they can be detected in urine even after 2 to 3 weeks. Renal clearance almost equal to the creatinine clearance. Now therapeutic use, जो main 4 aminoglycoside antibiotics हैं जैसे gentamicin, streptomycin, amikacin, tobramycin, उनके common therapeutic effect होते हैं. These are effective against some gram-negative bacilli like Pseudomonas aeruginosa, Yersinia pestis, Francisella tularensis, विब्रियो कोलेरी, और यूज की जाती है टुलरेमिया के अंदर जो एक रेयर लिम्फोइड डिजीज होती है, प्लेग के अंदर, पल्मोनरी इन्फेक्शंस के अंदर, कुछ ग्राम नेगेटिव एंटेरिक माइक्रोब्स हैं जस्ट लाइक एशरिचिया कोलाई, क्लेब्सिला निमोनी, एंटेरोबैक्टर ओरिजिनिस, प्रोटियस एंड सिरासिया स्पीसीज है जो कोज करती है, इसलिए यूज होती है बेसिकली क्रोनिक यूटीआई के अंदर, निमोनिया के अंदर। एंड देन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस,
in subacute bacterial endocarditis, peritonitis, and septicemia. Gentamicin is also effective against the infections on burn surface, lung abscess, osteomyelitis, middle ear infection, septicemia, meningitis, and subacute bacterial endocarditis, etc. Tobramycin is used as the alternate of gentamicin. Even cipromycin भी gentamicin का अल्टरनेट ही यूज होती है और सेम पर्पज में यूज करते हैं जहां जेंटामाइसिन यूज करते हैं. अमिकासिन हैज ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी और ये बेसिकली नोसोकोमियल डिजीज के लिए यूज होती है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन से हो जाता है, और वहां जहां जेंटामाइसिन और टोबरामाइसिन रेजिस्टेंट हो जाती है, इफेक्ट नहीं करते, वहां नोसोकोमियल इन्फेक्शन में अमिकासिन यूज किया जाता है. कैनामाइसिन spectrum is almost similar to the streptomycin. Neomycin is effective against most of gram-negative bacilli and some gram-positive cocci. Topically used होती है neomycin for treatment of infection in the wounds, ulcer, burn surfaces, external ear infections, conjunctivitis, etc. And neomycin along with the metronidazole is orally used in preparing the bowel for surgery. Before surgery, surgery से पहले यूज किए जाते हैं and they reduce the post operative infections. Now Framicetine is topically used against infections on the skin, eye, ear, etc. like neomycin. Neomycin ointment use होती है. Framicetine बहुत common है, आपने नाम सुना होगा सोफ्रामाइसिन जो आती है मार्केट में. सोफ्रामाइसिन में फ्रामिसिटीन होता है. देन परमोमाइसिन जिसके कुछ अनदर नेम भी सजेस्टेड है, दैट इज अमीनोसिडीन, गैब्रोमिसिना. ये इफेक्टिव होती है काफी प्रोटोजोल पैरासाइट्स के लिए, जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो अमेबियासिस कोज करता है, जियार्डिया, लैम्बलिया जियार्डियासिस कोज करता है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम, लेशमीनियासिस में यूज होती है, एंड टेपर इन्फेक्शंस. It is also used as an alternative to neomycin for hepatic encephalopathy. Parenterally, it is being used for visceral leishmaniasis. Now, plazomicin, or betterly saying plazomicin, is effective in treating the complicated UTI. Now, toxicity of aminoglycosides. Aminoglycosides are highly toxic. The main toxic effect is autotoxicity, जो डिपेंड करते हैं आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर और ड्यूरेशन ऑफ डोज पर कितनी ज्यादा रही. जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी. ऑटोटॉक्सिसिटी इसलिए होती है कि लेबरिंथ फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेट हो जाती है और इट विल कॉज डैमेज टू द कोक्लियर डैमेज एज वेल एज वेस्टिबुलर डैमेज. कोक्लिया को डैमेज करती है जो स्टार्ट होता है बेस से और अपेक्स तक चला जाता है, फिर डिजेनरेट कर देता है ऑडिटरी नर्व फाइबर्स को. पहले हियरिंग लॉस अफेक्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का, देन लो फ्रीक्वेंसी साउंड, और धीरे धीरे परमानेंट डीफनेस आ जाती है. वेस्टिबुलर डैमेज से loss of balance हो जाता है. It usually start with the headache, then followed by nausea, vomiting, dizziness, vertigo, ataxia, and finally loss of balance. Now nephrotoxicity ये इसलिए होता है कि ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर अमीनोग्लाइकोसाइड कंसंट्रेट हो जाते हैं, पहले ही बताया जा चुका है, और ये ट्यूबुलर डैमेज कर देते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पावर टू कंसंट्रेट ऑफ यूरिन है दैट बिकम लेस, लो जीएफआर और नाइट्रोजन रिटेंशन हो जाती है, एल्ब्यूमिनुरिया हो जाता है. फिर होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाता है या पैरालिसिस. ये बेसिकली क्यों होता है? जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है इट अकर्स व्हेन अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय आइदर इंट्राप्लुरल रूट और इंट्रापेरिटोनियल रूट. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्री जंक्शनल मोटर नर्व एंडिंग से एस्टाइलकोलिन का रिलीज कम हो जाता है, और वो कम होने से जो मस्कुलर एंड प्लेट्स होती है उसकी सेंसिटिविटी या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है टुवर्ड्स एस्टाइलकोलिन. दैट्स व्हाई दिस कॉज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज और न्यूरोमस्कुलर
पैरालिसिस। कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हैं, बेसिकली स्किन रैशेस, इचिंग, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो टॉपिकली अप्लाइड अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए कॉमन है। ट्रियाटोजेनिसिटी, since these can easily cross the placenta, reach the amniotic fluid, fetal ototoxicity, nephrotoxicity बहुत कॉमन है। अब एक बहुत सिंपल सी आसान ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम अमीनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी को मेमोराइज कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, दैट इज नॉन टॉक्सिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर इम्पॉसिबल। How we can memorize non-toxic, this and nephrotoxicity or autotoxicity, again and neuromuscular blockade or paralysis, T teratogenicity, and A is allergic reactions. So with these we can easily remember the toxic effects of aminoglycosides. Now this complete almost pharmacology of aminoglycosides. Along with the study of these aminoglycosides, we have to make ourselves safe and defeat the COVID-19. To defeat COVID-19, all we are supposed to stay at home, make it clean, keep the infection away, whether that is of COVID-19 or any other else. Stay safe, and finally, keep on learning. Thank you. Thank you very much.